Hello, good morning, student. For class 9, chapter number motion. The topic is the graphical representations of motion. There is two graph. First graph is distance time graph, and second graph is known as a velocity time graph. It is represent the change in position. The distance time graph. It is represent the change in position of object with respect to time. This is known as a distance time graph. The graph in case of object are stationary means the distance is constant at all time interval. A straight line graph parallel to the y-axis. Now first graph is a distance time graph. So that this is a x-axis and this is a y-axis. This graph is time and this is known as a distance. Okay. So the object are stationary. So this graph is known as a constant graph and the straight line graph parallel to the y-axis. The figure distance time graph in case of stationary object. In case of stationary, ये जो हमने कंडीशन ली है उसमें क्या लिया है? इन केस ऑफ स्टेशनरी. स्टेशनरी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट किस पर है? रेस्ट पर. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखा है और टाइम चेंज हो रहा है. सपोज आपके रूम में एक टेबल है, वो टेबल 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर्स 5 आवर्स कंटिन्यूस टाइम चेंज हो रहा है, बट डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कैसा है? स्टेशनरी. सेकेंड केस, इन केस ऑफ स्टेशनरी मोशन. अब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी, अब ऑब्जेक्ट नहीं है, अब ऑब्जेक्ट कैसा कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन. तो जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा, द ग्राफ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, द ग्राफ इज ऑल्सो नॉन एज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज द डिस्टेंस चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में. तो दिस ग्राफ इज नॉन एज अ यूनिफॉर्म ग्राफ. बेटा यदि आपको ये ग्राफ्स माइंड में क्लियर होंगे तो आप आगे न्यूमेरिकल्स आसानी से कर सकते हैं. जैसे ऑब्जेक्ट 1 मिनट में 10 जाता है, नेक्स्ट में फिर 20, 1 मिनट में वो जा रहा है 10, 2 मिनट में वो जा रहा है 20, 3 मिनट्स में जा रहा है वो 3 मिनट्स में जा रहा है 30. ऐसे डिस्टेंस कैसी है? द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन, this is the equal distance and equal interval of time. This is known as a uniform motion. But in this case, the non-uniform motion. In this case, the non-uniform motion. If a non-uniform motion, the distance and time are changed. So this is known as a non-uniform graph. Okay, the distance time graph so the distance time graph is 3 types. First, in case of a stationary object, in case of uniform motion, and in case of non-uniform motion. Now, second is a velocity time graph. Second graph is a velocity time graph. The velocity time graph is the graph between velocity and time. So x-axis is represented by time and y-axis is represent the velocity. So the velocity change with respect to time. This total graph is represent the acceleration of the object. And this the velocity is distance upon time. This graph is totally represented by velocity. ओके, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं वेलोसिटी. फर्स्ट हमारा वही रिप्रेजेंट करेगा. फर्स्ट इज किसको रिप्रेजेंट करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी. किसको रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट ग्राफ? कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या होगी? किसी भी एक पॉइंट पे सपोज मान लीजिए टाइम चेंज कर रहे हैं लेकिन कार की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, तो वो फिक्स है, उसकी फिक्स है. दिस इज नॉन एज अ कांस्टेंट वेलोसिटी. एंड देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म. ओके, VT graph is a uniform acceleration.
इट इज़ नॉन एज ए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन. क्यों बोला है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन? बिकॉज द वेलोसिटी आर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू time. This is known as a non-uniform velocity time graph, and this is known as these the object are is a uniform acceleration, and these graph is represented by vt graph, but non-uniform acceleration. So the velocity time graph are, the graph can have the different shape. Is the different shape. So dear student, the graphical representations of motion is two types. First is a distance time graph and velocity time graph. Distance time graph as in case of a stationary object, in case of uniform motion, in case of non-uniform motion, in case of non-uniform motion. But the second is velocity time graph is represented by velocity and time, and the velocity time graph is first is a constant velocity. Then is a vt for uniform acceleration, and vt graph is non-uniform acceleration, and non-uniform accelerations are different shape. So my next topic is calculating displacement from velocity time graph. हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैलकुलेटिंग displacement from velocity time graph. Consider a graph. ये हमारा ग्राफ देख लीजिए आप. यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिए 10, 20, 30, 40, 50, 60. This is represented by वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में. ओके, एंड दिस इज़ नॉन एज टाइम. टाइम हमने कैसे लिया? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18. ये हमारा टाइम है. कंसिडर इन दिस ग्राफ द कांस्टेंट वेलोसिटी आर 40. वो किस वेलोसिटी से कर रहा है? 40. सो हम यहाँ से पॉइंट ले लिया हमने A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज B. हमने कि एरिया कवर कर लिया. ओके, A, B, C एंड D, दिस एरिया हमने कवर कर लिया. कंसिडर द ग्राफ गिवन बिलो. द एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम. एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में हमने ये एरिया कवर किया. Hence we want to find out the distance traveled between the time interval of t1 and time interval of t2. We need to calculate the area enclosed by the rectangular ABCD. What is the area of rectangular? तो area of rectangle ABCD का होता है लेंथ टू ब्रेड्थ AC क्रॉस AB. Similarly, to calculate a distance traveled in a time interval in case of uniform acceleration, we need to find out the area under the graph as shown in figure. ओके, यदि हमको इसके लिए फाइंड आउट करना है, सिंपल सिर्फ कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वीटी ग्राफ. सपोज आपको कोई ग्राफ दे दिया और इस टाइप का एरिया फाइंड आउट कर दिया और आपसे पूछा कि फाइंड आउट करिए कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना. वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया इनक्लोज्ड बाय द रेक्टेंगल. कितना इसने कवर किया. ये किस टाइप का मोशन है? कांस्टेंट वेलोसिटी. ये हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी है. अब इसमें एरिया कवर करना है तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है तो हम डायरेक्ट निकालेंगे. सपोज़ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमको पता है, ये पता है, तो हम उससे क्या निकालेंगे? AC इंटू BC से. लेकिन कैलकुलेट द, ये हमारा कंप्लीट हो गया. सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम इंटरवल इन केस ऑफ यूनिफॉर्म. ये किसकी बात कर रहे हैं हम? केस ऑफ यूनिफॉर्म है. केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. केस ऑफ
यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, तब हम कैसे निकालेंगे? सपोज ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस वेलोसिटी ये हमारा कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये वेलोसिटी हमारी इस एक्सिस पर हमारे पास वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है और इधर टाइम है। टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, हमको यहाँ से यहाँ तक हमने इस पॉइंट्स को ले लिया, इसको फिर हमने ऐसा ले लिया। ओके, और ये हमारा ग्राफ हो गया, ये कांस्टेंट ग्राफ हो गया ए सी ई डी। दिस इज द टाइम ऑफ T1, दिस इज द टाइम ऑफ T2, ओके, एंड दिस इज द टाइम ऑफ B। ये ए बी हमारा यूनिफॉर्म मोशन। टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, सबसे पहले टू इन दीज ग्राफ similar to calculate the distance traveled in the time interval in case of uniform acceleration, we need to find out the area under the graph as shown in figure। इतना एरिया कवर हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया हमारा कवर हो रहा है। So in this, to calculate the distance between the time interval of T1 and T2, we need find out the area represented by A, B, E, D। ये इतना इतना आपने को एरिया कवर करना है, इतना ये नहीं है आपका, इतना ए ई इतना आपको एरिया कवर करना है। ठीक है, अब इसको कैसे कवर करें? तो इसको कवर करने के लिए हमने कुछ इक्वेशन ली। द इक्वेशंस ऑफ मोशन द रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के बीच में लेंगे, सो दैट इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन एंड टाइम। द ऑब्जेक्ट, एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड इफ इट ओनली। तो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ एंड द ऑब्जेक्ट हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। दो इक्वेशंस ऑफ मोशन निकलेगी। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। फर्स्ट, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस, उसमें फर्स्ट होती है हमारी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपको याद होनी चाहिए। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। देयर इज अ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ओके, वेयर u is the initial velocity, v is the final velocity, t is the time, a is the acceleration, s is the displacement. Okay, there is a very important topic is derive the equations of motion। हमको इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करनी है। सो दैट देयर स्टूडेंट, दिस इज अ ग्राफ। अब देखिए, इन दिस ग्राफ द ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन अ इनिशियल वेलोसिटी ओ टू पी तक। वो इनिशियल वेलोसिटी से जाता है यू, मतलब उसकी वेलोसिटी फिक्स होती है। पी से उसका टाइम चेंज होता है, मतलब वेलोसिटी आर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ से वो यूनिफॉर्म मोशन करता है एंड दिस द पॉइंट ऑफ दिस, कि यहाँ से हमने ले लिया, दिस इज द पॉइंट ऑफ, इसको आप मान लीजिए, इसको मान लीजिए ओ ए बी सी डी, ओके। अब ये यू है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा आपका यू। दिस इज नॉन एज द टाइम टी, ये वाली एक्सिस आपकी टाइम में है तो ये एक्सिस भी आपकी क्या होगी टाइम, दैट इज टी। अब देखिए ये पूरा किसके बीच में था, ये पूरा हमारा v है, दैट इज नॉन एज द वेलोसिटी, ओके। यदि ये पूरा v है इनिशियल पॉइंट से लगाकर फाइनल पॉइंट तक, o से y तक हमारा v है, तो ये पूरा v है और ये u है, तो बचा हुआ पॉइंट्स कितना हो गया बेटा, ये कितना मान लीजिए आपको, इसको मान लीजिए आप e मान लीजिए, इस पॉइंट्स को आप मेज़र कर लीजिए e। तो हमारा ए ई कितना हो गया है v माइनस यू। इफ दिस v माइनस यू, सो दिस इज द v माइनस ऑफ यू, ओके। यहाँ तक सभी को क्लियर है, ओके। द स्टडी द ग्राफ अबव
the u is the initial velocity and v the x-axis, sorry dear student, this is the graph. X-axis is represented by time and y-axis is represented by velocity. The object are a constant या initial velocity, the point O to A there is u, the initial velocity u can be derived from the velocity at point A by the line segment of, यह ले लिया हमने OA, the line segment of OA. Okay, the velocity at point A, the final velocity we can derive from the velocity at point B by the line segment of AB, है ना. फाइंड AE, फाइंड AE कैसे हुआ, OA में से, पूरे OE में से OA को हमने क्या कर दिया, माइनस. ओके, सो द एक्सेलेरेशन, अब देखिए यहाँ पे OA इज इक्वल्स टू U, सो दैट इनिशियल वेलोसिटी OA और CD भी बराबर है, OC बराबर AD बराबर T, दैट इज T इज टाइम. ओके, एंड AE इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज V माइनस U. ये क्या हो गई हमारी, चेंज इन वेलोसिटी. जितना AE है उतना BD भी है, दिस इज नोन एज अ BD. Okay, now first equation we can derive. What is the acceleration? According to the definition of acceleration, acceleration is defined as the rate of change of velocity, the rate of change of velocity with respect to time. So that the acceleration formula is change in velocity upon time. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी. कितना हो रहा है हमारा, ए ले लीजिए या फिर आप बी डी ले लीजिए, जो आपको लेना है, और टाइम ओ सी ले लीजिए. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हो गया बी डी अपॉन ओ सी. तो ए इज इक्वल्स टू बी डी है वी माइनस यू, ओ सी है टी, तो ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, तो वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. दिस इज द माई डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन निकालने का इजी तरीका, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अब बेटा देखो, चेंज इन वेलोसिटी ए से ई में भी हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी बी से डी में भी हो रहा है. आप दोनों ले सकते हैं, जो आपको लेना है, या तो ए ले लीजिए आप या फिर बी डी ले लीजिए. तो मैंने लिखा है एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ओ सी. इन दिस ग्राफ ओ सी इज रिप्रेजेंट बाय टी, तो A इज इक्वल्स टू V माइनस यू अपॉन टी, तो ए टी इज इक्वल्स टू V माइनस यू, सो V इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. ओके, थैंक यू.